اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ دمشق کے حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈورس کو سونپا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھر رہے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستوں کو شہر کے باہر صف آرا ہونے کا حکم دیا۔ مورخوں نے لکھا کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے۔ رومی چونکہ مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈورس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرج الروم پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مورخ واقدی ابن ہشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرج الروم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شمس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈورس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ تھیوڈورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا، عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، مجاہدو، دمشق تمہاری آبرو ہے۔ دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے۔ کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ یہ جوش و جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی کہ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کمک کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید رضی اللہ عنہ کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی اور تھیوڈورس اس کا آزمودہ سالار تھا۔ تھیوڈورس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید بن ابی سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستے کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور وہ سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر پر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کے موج در موج حملے روک رہے تھے اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں بھی۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علمبردار
सलारों और मुहाफिजों से कहते कि अलम न गिरने देना। बड़ी जल्दी वो वक्त आ गया जब मुजाहिदीन को यकीन हो गया कि एक तरफ दुश्मन की कैद और दूसरी तरफ मौत है। वो जीते जी ये नहीं सुनना चाहते थे कि दुश्मन दमिश्क पर काबिज हो गया है। ऐन उस वक्त जब मुजाहिदीन ने जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए जानों की बाजी लगा दी थी, रूमियों के अकब में शोर उठा और देखते ही देखते रूमियों में भगदड़ मच गई। दमिश्क के दिफा में लड़ने वालों को पता नहीं चल रहा था कि पीछे क्या हो रहा है और रूमियों पर क्या आफत टूटी है। उनकी तंजीम दरहम बरहम हो गई और उनके हमले भी खत्म हो गए। यजीद बिन अबी सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, इस्लाम के जाननिसारों, अल्लाह की मदद आ गई है, हौसले बुलंद रखो। हकीकत ये थी कि यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम ही नहीं था कि रोमियों के अकब में क्या हो रहा है। उन्होंने रूमियों पर हमले का हुक्म दे दिया। रूमियों को हमले रोकने का भी होश न रहा। यजीद बिन अबी सुफियान पहलू की तरफ निकल गए। मुहाफिज उनके साथ थे। वो रूमियों के अकब में जा रहे थे। शोरो होगा इस कदर ज्यादा था कि अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ ये पता चलता था कि रूमियों में भगदड़ और अफरा तफरी बपा हो गई है। कुछ और आगे गए तो यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु के कानों में आवाज पड़ी, अना फारिस अल जदीद, अना खालिद बिन अल वलीद। यजीद बिन अबी सुफियान गला फाड़ फाड़ कर ऐलान करते हुए पीछे आए, दमिश्क के मुहाफिजों, खुदा की कसम, इब्ने वलीद आ गया है, अबू सुलेमान पहुंच गया है, अल्लाह की मदद पहुंच गई है। अल्लाह को पुकारने वालों, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। खुदा की कसम, रूमी अपनी कब्रों पर लड़ रहे हैं, फतह हक परस्तों की होगी। उस दौर की तहरीरी रिवायात से पता चलता है कि यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर दीवानगी तारी हो गई थी और ऐसी ही दीवानगी उनके दस्ते पर तारी हो गई और उसके साथ ही रूमियों का कत्लेआम शुरू हो गया। यजीद बिन अबी सुफियान के लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का आ जाना एक मौजज़ा था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम फिर गुज़श्ता रात मर्जुल रोम चले चलते हैं, जहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु छुप छुप कर रूमियों के कैंप देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रूमियों की फौज का वो हिस्सा जो दिन के वक्त उनके सामने सफ आ रहा था वो नहीं है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन हो गया कि ये हिस्सा कहीं चला गया है, तो उन्होंने सलार आला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से बात की। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दूर अंदेश थे। उन्हें शक हुआ कि रूमियों की फौज का ये हिस्सा दमिश्क की जानिब गया है और रूमियों का मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि दमिश्क पर कब्जा कर लिया जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हरकल मामूली दिमाग का आदमी नहीं, उसे मालूम होगा कि दमिश्क में हमारी नफरी बहुत थोड़ी है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं समझ सकता कि दमिश्क खतरे में है। अगर तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं दमिश्क पहुंच जाऊं। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो अबू सुलेमान, मैं तुझे इजाजत देता हूँ और तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये जो रूमी पीछे रह गए हैं इन्हें मैं संभाल लूंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हा भी जाया न किया। अपने सवार दस्ते को तैयार करके दमिश्क को रवाना हो गए। रास्ते में कई निशानियां और कई आसार उन्हें यकीन दिलाते रहे कि उस रास्ते पर एक फौज गुजरी है। थियोडोरस आधी रात से पहले मर्जुल रोम से रवाना हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु रात के आखिरी पहर रवाना हुए और दमिश्क उस वक्त पहुंचे जब मुसलमान हारी हुई जंग लड़ रहे थे और उन्हें कुमक की जरा भी तवक्को नहीं थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ वही नजर आया जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने अकब से रूमियों पर हल्ला बोल दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को रूमियों का परचम नजर आया तो अपने मुहाफिजों के साथ वहाँ जा पहुंचे। उन्हें थियोडोरस बौखलाहट के आलम में दिखाई दिया। उसे दमिश्क अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। वो उसके हाथ से निकल गया था और उसकी फौज फतह के करीब पहुंचकर कटने लगी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने थियोडोरस को ललकारा, मैं रूमियों का कातिल हूँ, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से रात को तू आया था। थियोडोरस ने तलवार निकाल ली। दोनों सालारों के मुहाफिज अलग अलग हट गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने थियोडोरस के 2-3 वार बेकार कर दिए और उसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते रहे। थियोडोरस को भरपूर वार करने के लिए मौजूद पोजीशन नहीं मिल रही थी। वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के रहमो करम पर था। वो माना हुआ जंगजू सालार था, लेकिन उसका मुकाबला ऐसे सालार के साथ आ पड़ा था जो हर लम्हा शिकार की तलाश में रहता था। आखिर उसने बड़े गुस्से में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक पैंतरा बदल कर अपने आप को थियोडोरस की जद से दूर कर लिया और दूसरे पैंतरे में ऐसा वार किया कि थियोडोरस घोड़े पर भी दोहरा हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दूसरे वार ने उसे खत्म कर दिया। अब रूमियों के करने का एक ही काम रह गया था कि भागें और अपनी जानें बचाएं। वो रूमी खुशकिस्मत थे जो जिंदा निकल गए। माले गनीमत में ज़र्रा, खौदें, हथियार और घोड़े काबिल जिक्र थे। उधर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे रूमी सालार शंस को खत्म कर दिया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हुक्म के साथ रवाना कर दिया कि वो हम्स पहुंचकर वहां का मुहासरा कर लें। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद एक और अहम मकाम बलबक की तरफ रवाना हो गए।
तवक्को ये थी कि उन दोनों जगहों का मुहासरा तूल पकड़ेगा और मुकाबला बड़ा सख्त होगा, लेकिन मौरखों के मुताबिक मुसलमानों की तलवार की दहशत वो काम नहीं कर सकती थी जो उनके हुस्ने अखलाक ने किया। मुसलमान जिधर जाते थे वहाँ के लोगों में पहले ही मशहूर हो चुका होता था कि मुसलमान किसी पर कोई ज्यादती नहीं करते और वो उन्हीं शर्तों के पाबंद रहते हैं जो वो पेश करते हैं। उस दौर की फातिह फौजें सबसे पहले मफतूह शहर की खूबसूरत औरतों पर हल्ला बोलती थीं, फिर लोगों के घर लूट लेती और घरों को आग लगा देती। ये उस जमाने का रिवाज था और उसे फातिह फौजों का हक समझा जाता था, लेकिन मुसलमानों ने इस रिवाज को ना अपनाया बल्कि निहत्थे लोगों की इज्जत व आबरू और जानो माल की हिफाजत की। इसी का नतीजा था कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बलबक पहुंचे और शहर का मुहासरा किया तो वहाँ जो रूमी दस्ता था उसने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम्स का मुहासरा किया तो रूमी सालार हरबीस बाहर आ गया और अमन के समझौते की पेशकश की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुंच चुके थे। उनके हुक्म से रूमी सालार से 10,000 दिनार और ज़रबफ्त की 100 कुबाओं का मुतालबा किया गया जो रूमी सालार ने कबूल कर लिया। मुआहिदा ये हुआ कि मुसलमान 1 साल तक हम्स पर हमला नहीं करेंगे और अगर इस दौरान रूम की फौज ने उस इलाके में मुसलमानों के खिलाफ कोई मामूली सी भी जंगी कार्रवाई की तो मुसलमान सुलह के मुआहिदे को मनसूख समझकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस मुआहिदे पर दस्तखत होते ही शहर के दरवाजे खुल गए और मुसलमान फौज दाखिल हो गई। मौरिख इब्ने असीर लिखता है कि हम्स के लोग ये देख कर हैरान होते थे कि मुसलमान दुकानों में जाते और जो चीज लेते उसकी कीमत अदा करते। बाज लोगों ने मुजाहिदीन को तोहफे पेश किए तो मुजाहिदीन ने उनकी भी कीमत अदा की। वो कहते थे कि मुसलमान तोहफे को माल गनीमत समझते हैं और कोई मुसलमान अपने तौर पर कोई माल गनीमत अपने पास नहीं रख सकता। इसके अलावा सुलह के मुआहिदे के बाद इस्लाम माल गनीमत को जायज नहीं समझता। ऐसे मकामात भी आए जहाँ के लोगों ने मुसलमान फौज का बाकायदा इस्तेकबाल किया। मसलन नवंबर 635 ईस्वी रमजान 14 हिजरी मुसलमान फौज हम्स से हमा गई तो शहरी बाहर आ गए और मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। मेरतुन नुमान के शहरियों ने मुसलमानों का इस्तेकबाल इस तरह किया कि पहले साजिंदे साज बजाते और खुशी के गीत गाते बाहर आए। उनके पीछे मौज़ज़ीन आए और जिजिया पेश करके शहर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया। उसके बाद उन कस्बों और शहरों के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वहाँ शहनशाह हरकल अपने सालारों से कह रहा था, मुसलमान हमारे जाल में आ गए हैं। मैं सर्दियों के इंतजार में था। अरब के ये मुसलमान ऊंट का गोश्त खाते हैं और ऊंटनी का ही दूध पीते हैं। रेगिस्तान के इन बाशिंदों ने कभी इतनी सर्दी नहीं देखी। ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क की सर्दी इनके जोश और जज्बे को मुंजमद कर देगी। फिर मौसम सरमा खत्म होने तक मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। हम इन्हें बड़ी आसानी से शिकस्त देंगे। इनके खैमे इन्हें सर्दी से नहीं बचा सकेंगे। हरकल ने हुक्म दिया कि हमसे मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। कुछ दिनों के बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली कि रूमियों की कुमक हम्स पहुंच गई है। रूमियों की इस कार्रवाई के बाद हम्स का मुआहिदा टूट गया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं और थे और इत्तला मिलते ही वो अपने दस्तों को साथ लेकर हम्स जा पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले पहुंचे थे। वो हम्स के करीब गए तो बाहर रूमी फौज लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस फौज पर हमला कर दिया। रूमी पीछे हटते गए और किले में दाखिल होकर उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने दस्तों के साथ आन पहुंचे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू सुलेमान, ये मुहासरा तेरा है और तू इसका सालार है। ये एक बहुत बड़ा एजाज था जो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहकाम के मुताबिक सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे। ये दिसंबर का महीना था। सर्दी का उरूज शुरू हो चुका था। मुसलमान इतनी ज्यादा सर्दी के आदी नहीं थे। उन पर सर्दी बड़ा बुरा असर कर रही थी। ये सबसे बड़ी वजह थी कि मुहासरा तूल पकड़ता गया। इस दौरान खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म आ गया। उसके तहत कुछ दस्ते इराक को भेजने थे। ये दस्ते चले गए तो रूमी समझे कि मुहासरा उठ रहा है, लेकिन ऐसा न हुआ। रूमी यही तवक्को लिए किले में बैठे रहे कि मुसलमान मुहासरा उठा लेंगे। मार्च 636 ईस्वी का महीना आ गया। सर्दी की शिद्दत खत्म हो चुकी थी। रूमी सालार हरबीस रोम के शाही खानदान का आदमी था। उसे किसी के हुक्म की जरूरत नहीं थी। उसने अपने नायब सालारों और कमांडारों से कहा कि सर्दी का मौसम गुजर गया है। पेशतर इसके कि मुसलमानों को कुमक मिल जाए और ये सर्दी से भी संभल जाएं, इन पर हमला कर दिया जाए। चुनाचे एक रोज शहर का एक दरवाजा खुला और 5000 नफरी की रूमी फौज ने बाहर आकर मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो उस दरवाजे के सामने मौजूद था। हमला बड़ा तेज और शदीद था। मुसलमान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसके अलावा उन पर सर्दी का भी असर था, इसलिए वो मुकाबले में जम न सके। पीछे हटकर वो मुनज़्ज़म हुए और आगे बढ़े, लेकिन रूमियों के दूसरे हमले ने उन्हें फिर बखेर दिया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू सुलेमान,
क्या तू देखता रहेगा कि रूमी फतेहयाब होकर वापस किले में चले जाएं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो उस दरवाजे के सामने से हट नहीं सकते थे जिसके सामने वो मौजूद थे। फिर भी उन्होंने अपना सवार दस्ता साथ लिया और रूमियों पर हमला कर दिया। रूमियों ने जमकर मुकाबला किया और सूरज गुरूब हो गया। रूमी किले में चले गए। उनकी बहुत सी लाशें और शदीद जख्मी पीछे रह गए। दूसरे दिन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों को बुलाया। क्या तुमने खुद महसूस नहीं किया कि कल रूमियों ने बाहर आकर हमला किया तो हमारे आदमी बेदिली से लड़े? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकायत के लहजे में कहा, क्या हम में ईमान की हरारत कम हो गई है? सर्दी से सिर्फ जिस्म ठंडे होते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सालार आला, हमारे आदमी बेदिली से नहीं लड़े। दरअसल जिन रूमियों ने हमला किया था वो उन रूमियों से ज्यादा जुर्रत और हिम्मत वाले थे जिनसे हम अब तक लड़ते रहे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर तू ही बता अबू सुलेमान, हमें इतने लंबे मुहासरे में यहीं बैठे रहना चाहिए? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं अबू उबैदा, कल सुबह हम मुहासरा उठा लेंगे। दूसरे सालारों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। उन्होंने कहा, हाँ मेरे दोस्तों, कल हम यहाँ नहीं होंगे और मेरी तजवीज गौर से सुन लो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मुहासरा उठाने के मुताल्लिक कुछ हिदायत दी। अगली सुबह शहर की दीवार के ऊपर से आवाजें आने लगी। वो जा रहे हैं, मुहासरा उठ गया है, वो देखो मुसलमान जा रहे हैं। सालार हरबीस को इत्तला मिली तो वो दौड़ता हुआ दीवार पर आया। उसके साथ बड़ा पादरी था। हरबीस ने कहा, सर्दी ने अपना काम कर दिया है, इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही। मैं इन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, इनके ताक़ुब में जाऊंगा, इन्हें खत्म करके आऊंगा। पादरी ने कहा, मोहतरम सालार, मुझे ये मुसलमानों की चाल लगती है। ये मुंह मोड़ने वाली कौम नहीं है। वो देखो, वो अपनी बीवियों और बच्चों को यहीं छोड़ गए हैं। हरबीस ने कहा, मैं देख रहा हूँ। हरबीस ने कहा, अपनी बीवियों और बच्चों को वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। इनकी हिफाजत के लिए इन्होंने बहुत कम सिपाही पीछे छोड़े हैं। वो सामान बांध रहे हैं, लेकिन उन्हें हम जाने नहीं देंगे। मैं पहले उनके ताक़ुब में जाऊंगा जो हौसला हार कर चले गए हैं। हरबीस ने फौरन 5000 सवार तैयार किए और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों के ताक़ुब में रवाना हो गया। उन्होंने 2-2.5 मील फासला तय कर लिया था जब रूमी उन तक पहुंच गए। जो ही हरबीस अपने दस्ते के साथ मुसलमानों के करीब पहुंचा, मुसलमान अचानक 2 हिस्सों में बट गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुज़श्ता रोज सालारों को यही बताया था कि रूमी उनके ताक़ुब में जरूर आएंगे और उन्हें घेरे में लेकर खत्म करना है। उसके मुताबिक मुसलमान चलते चलते 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा दाएं को होकर पीछे मुड़ा और दूसरा बाएं तरफ होकर घूम गया। रूमी ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। वो बौखला गए। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में ले लिया। अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ मुजाहिदीन को पीछे छोड़ाना भी इसी धोखे का एक हिस्सा था। रूमी पीछे को भागे तो यही मुजाहिदीन जो औरतों और बच्चों के साथ थे रूमियों पर टूट पड़े। फिर उन्होंने रूमियों की पसपाई का रास्ता रोक लिया। एक और सालार माज बिन जबल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की पहले से दी हुई हिदायत के मुताबिक 500 सवार साथी लेकर हम्स के रास्ते में आ गए ताकि कोई रूमी शहर की तरफ ना सके। रूमी इतनी जल्दी भागने वाले नहीं थे, लेकिन वो मुजाहिदीन के फंदे में आ गए। वो ताजा दम थे। कुछ अपनी रिवायात के मुताबिक, कुछ अपनी जान बचाने के लिए वो बेजिगरी से लड़ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सालार हरबीस को ढूंढ रहे थे। उनकी तलवार से खून टपक रहा था। उनके रास्ते में जो आता कटता जाता। आखिर वो उन्हें नजर आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर कहा, मैं हूँ इब्ने वलीद, फारसियों का कातिल इब्ने वलीद, रूमियों का कातिल इब्ने वलीद। Islamic Show